Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. Today we are going to kickstart the very first chapter of Biology Class 10 Science, which is the life processes. So as we all know that this chapter is very important for all the students who are going to appear for standard 10th boards, since there are lots of conceptual questions based on this chapter. So let's study each and every topic and concept related to this chapter and just start this chapter. So very first question, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? What is life processes? ये जो टर्म है life processes, इससे आप समझते क्या हो? What is life processes? तो आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, those are termed as life processes. वो सारे processes which are very necessary to support life of an individual including humans is considered as life processes. तो ये जो life processes है तो इनमें क्या क्या होते हैं? सबसे बेसिक होता है न्यूट्रिशन, followed by transportation, respiration, then we have excretion, reproduction, blah blah blah. These are the very important chapters, topics, or we can say very important processes of life. So if I talk about the definition, अगर मैं definition का बात करती हूँ तो life processes क्या होते हैं? All the basic functionalities which are essential to support life of an individual living organism are termed as life processes. So before starting this chapter, a very basic thing जो आपको पता होनी चाहिए, that is what is the difference between living and a non-living. कैसे हम बताएंगे कि ये living है या non-living है? ऐसे तो बहुत सारे differences है, but हम कुछ differences पे ध्यान देते हैं कि अगर हम किसी को living बोल रहे हैं या हम किसी को non-living बोल रहे हैं तो किस basis पे बोल रहे हैं, ठीक है? One side we have living and on the other side we have non-living. So if I talk about basic difference, तो सबसे पहला basic difference क्या होता है? Cellular organization. जो living organisms होते हैं, they are made up of cells and conjugations of cells, which is tissues, conjugation of tissues, which is organs forms organ system, and the whole organ system forms an organism. So most basic, सबसे basic अगर मैं functionality बात करूं of a living, that is cellular organization, presence of cells. और वहीं अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूंगी तो सेल जैसा कुछ प्रेजेंट होता है? नहीं होता है. नॉन लिविंग में सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. एब्सेंस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? So the next difference is response to stimuli. किसी भी stimuli, किसी भी external factor के against हमारा body जो response करता है, that is response to stimuli. तो जो living organisms होते हैं वो किसी भी stimuli के against response करते हैं, एक change show करते हैं, but non living ऐसा कोई भी response show नहीं करते हैं. No response to stimuli. Then we have third. क्या होगा third? That is intrinsic growth, यानी कि internal growth. Living organisms जो होते हैं वो internal growth show करते हैं, intrinsic growth show करते हैं. Intrinsic growth. But वहीं अगर मैं non living का बात करूं तो वो ग्रोथ तो शो करते हैं लेकिन वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं, आउटर ग्रोथ शो करते हैं, जो कि रिवर्सिबल होता है नेचर में. इंट्रिंसिक ग्रोथ शो नहीं करते हैं. एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, नॉट एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ. तो
do not show intrinsic growth, ये intrinsic growth show नहीं करता है. Next difference is metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called as metabolism. हमारे बॉडी में जितने भी chemical reactions हो रहे हैं that is necessary for the support of life is termed as metabolism. ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं. do not show or perform metabolic reactions. और एक वेरी बेसिक डिफरेंस इज रिप्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस या ऑफस्प्रिंग, सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी होती है वो सिर्फ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है. तो जो लिविंग होते हैं वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड द नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थी बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब हम स्टार्ट करेंगे विद अ टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को देखा, लाइक वो न्यूट्रिशन हो सकता है. डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, तो एक होता है न्यूट्रिशन जो बेसिकली हमें एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि हमें पढ़ना है. न्यूट्रिशन है. अगला क्या है? रेस्पिरेशन है. फिर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है. ट्रांसपोर्टेशन एंड वी हैव एक्सक्रीशन. मेजरली हमें इन चारों के बारे में ही पढ़ना है इन द प्रोसेस ऑफ इन द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, सो बेसिकली विल फर्स्ट स्टार्ट विद द टर्म न्यूट्रिशन. हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन से. हम लोग कौन से टर्म से शुरू करेंगे? न्यूट्रिशन से. ठीक है, तो ये जो टर्म न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होता है? जो सिंपल सा टर्म है न्यूट्रिशन, इससे आप क्या समझते हैं? सो बेसिकली अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूं तो ये सिंपली इट्स ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ. अगर डेफिनेशन वाइज मैं बात करती हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स as well as their utilization to support life. क्या होता है न्यूट्रिशन? It is the process of breakdown of nutrients into simpler forms to support life. ठीक है, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म टू सपोर्ट लाइफ. कैसे? इनको यूटिलाइज करके हम अपने लाइफ को सपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन तो पढ़ लिए कि हाँ न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने लाइफ को सपोर्ट कर सकें. बट अगर यहाँ पे टर्म मेंशन है न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? एक न्यूट्रिशन इज पोषण एंड दिस न्यूट्रिएंट्स इज पोषक तत्व. तो ये पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? ये जो टर्म है न्यूट्रिएंट्स, ये है क्या? इससे हम क्या समझते हैं? क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? सो न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं, फूड के वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को हेल्प करता है टू परफॉर्म, हमें मतलब हेल्प करता है टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी. सो these all compounds which support our life by performing various activities like growth, repair, energy, by providing energy, ये सारी चीज़ें all togetherly क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. सो अगर मैं डेफिनेशन का बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होगा? कंपाउंड्स
फूड के वो कंपाउंड्स दैट facilitates to provide us energy and helps in the growth and repair of the body as well as support life। तो वो सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड या वो सारे कंपाउंड्स ऑफ फूड जो फैसिलिटेट करते हैं, क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड एट द सेम टाइम दे सपोर्ट आवर लाइफ। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स का अगर हम क्लासीफाई करें, अगर न्यूट्रिएंट्स का हम क्लासिफिकेशन करें, अगर पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन करें, तो ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है ये मॉलिक्यूलर वेट वाइज ज़्यादा होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, मोर मॉलिक्यूलर वेट, और इस वेट के बेसिस पे ही इनका नाम दिया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट में मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो माइक्रो में क्या होगा, लेस होगा, लेस मॉलिक्यूलर वेट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि ये करते क्या है, यही है वो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो सारे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, और ये सारे जो होते हैं इनका फंक्शन होता है एंजाइम कैटालिसिस में, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टू एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, इम्यून सिस्टम एटसेट्रा। सो इनमें होते क्या क्या है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हम 5 पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कौन से कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है वो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले कैटेगरी में पाए जाएंगे, और जो हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक अबाउट लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और आज हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। न्यूट्रिशन इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, एक है ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर, इन चीज़ों का यूज़ करके वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो सोलर एनर्जी होता है, बट देर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑटोट्रॉफिक मोड को कैटेगराइज करूँ तो इसमें 2 तरह के प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, एक तो वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट का यूज़ करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और एक हो जाते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो लाइट एनर्जी नहीं केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं फूड का
प्रोडक्शन के लिए। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस हो जाएगा या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो सोलार एनर्जी के हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो हो जाएंगे जो केमिकल एनर्जी के हेल्प से अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक की तरफ। ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल की बात करती हूँ, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, और अगर मैं कीमोसिंथेटिक का बात करूं तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे आपके कीमोसिंथेटिक होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, दोज आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। क्या क्या है वो? ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैटेगराइजेशन किया गया है 3 कैटेगरीज में, वो क्या है? एक तो है सैप्रोफाइट्स, ठीक है, दूसरा है पैरासाइट्स, या हम सैप्रोफिटिक लिखते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, देन वी हैव पैरासिटिक, एंड देन वी हैव होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। तो ये जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है? बेसिकली सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर, इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं अपने बॉडी के बाहर और डेड एंड डिकेइंग मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सैप्रोफाइट्स में न्यूट्रिशन की, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, उनका जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पे ये डिपेंडेंट हो गया। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो कौन होता है? बेसिकली जो किंगडम फंजाई होता है, जैसे कि मशरूम हो गया, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी फंजाई होते हैं, या तो मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, तो जो भी फंजाई होते हैं वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। अब बात है पैरासिटिक की। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा के, हार्म करके, लेकिन विदाउट किलिंग, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन बाय हार्मिंग अ होस्ट, किसी होस्ट को वो हार्म करते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम किस में देखते हैं? हम राउंड वॉर्म में देखते हैं, इवन लाइस में देखते हैं। लाइस आप सबको पता ही होगा, लड़कियों के बालों में हो जाती हैं, छोटे से पैरासाइट्स होते हैं जो बाल में घूमते रहते हैं, आपके ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव फाइनली द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। होलोजोइक का मतलब है ईटिंग द होल सॉलिड फूड। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप होते हैं? इंजेशन, सबसे पहले इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फॉलोड बाय डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। आफ्टर डाइजेशन देयर इज एब्जॉर्प्शन, जो खाना स्मॉलर फॉर्म्स में टूटा उसको हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में लेके जाएगा। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं असीमिलेशन। असीमिलेशन का मतलब होता है कि जो फूड खाया उसका ब्रेकडाउन हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको एटीपी में कन्वर्ट करना। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। हम जो भी खाना खाते हैं अल्टीमेटली वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो उस एटीपी के हेल्प से उसको डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करना। बेसिकली उस
ATP को यूटिलाइज करना इज असिमिलेशन। एंड फाइनली वी हैव द लास्ट प्रोसेस विच इज इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मैटर बच गया उसको बॉडी से बाहर निकाल देना इज इजेशन। सो बेसिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ 5-step प्रोसीजर इंक्लूडिंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड egestion. Egestion is the removal of the undigested food particle from the body. और अगर मैं holozoic mode of nutrition के examples के बारे में बात करूँ तो वो देखा जाता है सबसे common in us, in human beings and in amoeba. And basically आपको nutrition in human and nutrition in amoeba in depth पढ़ना है, like in basic, like in brief ही पढ़ना है, but आपको एक एक process बहुत अच्छे से आना चाहिए. So for today हम लोग यहीं तक आज पढ़ते हैं और अगले वीडियो में इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।